करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जपजी ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਸੋਚੇ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖਵਾਰ, ਚੁੱਪੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾਨ ਵਿਤਾਰ। ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਬੁਰੀਆਂ ਪਾਰ। ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੇ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮੇ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਐ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਨ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਨ ਜਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਕੇ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੇ ਦਿਸੇ ਦੂਰ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੇ ਹਾਦਰਾ ਦੂਰ। ਰਖਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੇ ਟੋਟ। ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਪਾਏ। ਜੁਗਾ ਜਵੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹੋ। ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਵੇ ਪਰਵਾਹੋ। ਸਾਚਾ ਸਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਪਾਖਿਆ ਪਉ ਪਾਰ। ਆਖੇ ਮੰਗੇ ਦੇ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਫਿਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਜਿਸ ਜਿਸੇ ਦਰਬਾਰ। ਮੋਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ ਜੇ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਐਵੇਂ ਜਾਣੀਏ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ। ਆਪਿਆ ਨ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਜੈਸੇ ਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਏ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ। ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰਖੀਏ ਭਾਉ ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਆ ਸਮਾਈ। ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ। ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨ ਜਾਈ। ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਤੀਰਥ ਨਾਮਾ ਜੇ ਤਿਸ ਪਾਵਾ ਬਿਨ ਪਾਨੇ ਕੇ ਨਾਈ ਕਰੀ। ਜੇ ਤੀ ਸਿਰਠ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾ ਬਿਨ ਕਰ ਮਾਕੇ ਮਿਲੇ ਲਈ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ
ਪਾਰ ਮਾਨਕ ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੋਨੀ ਹੋਏ ਨਵਾ ਖੰਡਾਵੇ ਜਾਣੀਏ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਏ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕੇ ਜਸ ਕੀਰੇ ਜਗਲੇ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨ ਪੁੱਛੇ ਕੇ ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤੇ ਆ ਗੁਣ ਦੇ ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨ ਸੂਝਈ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਈ ਕਰੇ ਸੁਣਿਐ ਸਿੱਧ ਪੀਸੁਰ ਨਾਥ ਸੁਣਿਐ ਤਰਕ ਤਵਲਾ ਆਕਾਸ ਸੁनिए दीप लो पताल सुनिए पोए न सके काल ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ सुनिए ईश्वर ब्रह्मा इंद सुनिए मुख सलाह हनुमंद ਸੁਣਿਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤਨ ਭੇਦ ਸੁਣਿਐ ਸਾਸ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ नानक भक्ता सदा विकास सुनिए दुख पाप का नाश ਸੁਣਿਐ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਐ 68 ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ सुनिए पढ़ पावे मान सुनिए लागे सही ध्यान ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ सुनिए सरा गुना के गा सुनिए सेक पीर पाछा ਸੁਣਿਐ ਅੰਨੇ ਪਾਵੇ ਰਾਸ ਸੁਣਿਐ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਕਾ नानक भक्ता सदा विकास सुनिए दुख पाप का नाश ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ कागद कलम न लिखन हार मन्ने कावे करन विचार ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध मन्ने सकल भवन की सुध ਮੰਨੇ ਮੋਚੋ ਟਾਣਾ ਖਾਏ ਮੰਨੇ ਜਮ ਕੇ ਸਾਥ ਨ ਜਾਏ ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए ਮੰਨੇ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਏ ਮੰਨੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ मन्ने मग न चले पंथ मन्ने धर्म से ती संबंध ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ मन्ने पावे मोक्ष द्वार मन्ने परवार ऐसा धार ਮੰਨੇ ਤਰੇ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੰਨੇ ਨਾਨਕ ਭਵੇ ਨ ਵੇਖ ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੇ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ पंचा सोहे दारा जान पंचा का गुर एक ध्यान ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੇ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ कौल धर्म दया कापू संदोख था प्रख्या जिन सूत ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੇ ਹੋਵੇ ਸਤਿਆਰ ਤਬਲੇ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਪਾਰ धरती होर परे होर तिस्ते पार तले कवन जोर ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਮ ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੜੀ ਕਲਾਮ ये लेखा लिख जाने कोई लेखा लिखया कीता हुए ਕੀਤਾ ਤਾਨ ਸਵਾਲੇ ਰੂਪ ਕੀਤੀ ਤਾ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਕੂਤ कीता पुसाओ एको को आओ तिस्ते होए लख दरियाओ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਣ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ जो तुझ पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ संग ग्रंथ मुख वेद पाठ संख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार संख सूरमो पाकसार संख मोन लिव लाए तार कुदरत कवण कहा विचार वारण जावा एक बार जो तुझ पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर संख अमर कर जाए जोर संग गलवड़ त्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़िया गुड़े फिराहे संख मलेश मल पक खाए संख निंदक सिर करे पार नानक नीच कहे विचार वारण जावा एक बार जो तुझ पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख है सिर पार होए अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुण गाहा अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग बखान जिन्हें लिखे तिसर नाए जी फरमाए तित पाए जेता कीता तेता नाव विंदा वे नाई को थाव कुदरत गमन कहा विचार वारणा जामा एक बार जो तुझ भावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार परिये हाथ पैर ठंडे पानी तोते उतरस खे मूत बलीती कपड़ होए दे साबुन ये हुए परिये मत पापा के संग ओ तो पहनावे के रंग उन्नी पापी आँखें नाहे कर कर करना लिख ले जाओ आपे बीज आपे ही खाओ नानक हुक्मी आवो जाओ धीरे तप आदत दान देखो पावे तिलका मान सुनिया मन्या मन कीता पाओ अंतर्गत तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे में नाही कोए बिन गुण कीते भक्त न होए स्वस्थात बानी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सवेला वक्त कवन थित कवन वार कवन सिर उत्ती माँ कवन जितो आकार देर न पाइया पंडिती जे होवे लेख पुराण वक्त न पायो का दिया जे लिखन ले कुरान हितवार न जोगी जाने रुत माहु न कोई जाकर दासिर ठीको साजे आपे जाने सोई किल कर आखा किल सालाही क्यों वरनी क्यों जाना नानक आखन सबको आके एक दो एक सियाना वड्डा साहेब वड्डी नाई कीता जाका होवे नानक जे को आपको जाने अगे ज्ञान आसो है पाताला पाताल लख्य आगासा आगास ओढ़क ओढ़क पाल थके वेद कैनिक वात सहस 18 कहन कते बासलू एक धारत लेखा होए ता लिखिए लेख
ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਏ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪ। ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆ। ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾ ਪਵੇ ਸਮੁੰਦ ਨ ਜਾਣੀਏ। ਸਮੁੰਦ ਸਾ ਸੁਲਤਾਨ ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ। ਕੀੜੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋਵਣੀ ਜਿਤ ਸਿਮਰਨੁ ਨ ਵਿਸਰੈ। ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿ ਨਾਨਤ ਅੰਤ ਨ ਕਰਨੇ ਦੇ ਨਾਨਤ। ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨ ਅੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੇ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੇ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਏਉ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੇ ਕੋਏ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਊਚਾ ਥਾਓ ਊਚੇ ਉਪਰ ਊਚਾ ਨਾਓ। ਕੇਵੜ ਊਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ ਤਿਸ ਊਚੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਸੋਏ। ਜੀਵਨ ਆਪ ਜਾਣੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਕੀਤੇ ਮੰਗੇ ਜੋ ਦੇ ਅਪਾਰ ਕੀਤਿਆ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ। ਕੀਤੇ ਖਪ ਟੁੱਟੇ ਵੇਕਾਰ। केते ले ले मुकर पाए केते मूर्ख खाई खाए। ਕੀਤਿਆਂ ਦੂਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ ਲਿਪੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। बंद खलासी भाणे होए हो राख ना सके कोए। ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੋ ਆਖਣ ਪਾਏ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਿਤਿਆ ਮੋ ਖਾਏ। आपे जाने आपे दे आखे से पी गई के। ਜਿਸਨੋ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। मुल गुना मुल पारिय मुल भंडार। ਮੁੱਲ ਆਵੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਏ ਮੁੱਲ ਪਾਏ ਮੁਲਾ ਸਮਾਹੇ। अमूल धर्म मूल देवान अमूल तुल अमूल परवान। ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਅਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫਰਮਾਨ। अमूलो मूल आख्या न जाए आख आख रे लिवलाए। ਆਖੇ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਆਖੇ ਪੜੇ ਕਰੇ ਵਿਗਿਆਨ। आखे बरमे आखे इंद आखे गोपी ते गोविंद। ਆਖੇ ਈਸ਼ਰ ਆਖੇ ਸਿੱਧ ਆਖੇ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ। आखे दानव आखे देव आखे सुर नर मुंजन सेव। ਕੀਤੇ ਆਖੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਕੀਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉੱਠ ਜਾਹੇ। एते कीते होर करे ताक न सके केई के। ਜੇਵੜ ਭਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਣਿਆ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। जे को आखे बोल बिगाड़ ता लिखिए सिर गवारा गवार। ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤਵੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। बाजे नाद अनेक संखा केते वामन हारे। ਕੀਤੇ ਰਾਗ ਪਰਿਸੋ ਕਹੀਐਨ ਕੀਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ। गावे दोनों पौन पानी बैसंतर गावे राजा धर्म द्वारे। ਗਾਵੇ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਿਆ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोन सदा सवारे। ਗਾਵੇ ਇੰਦਰੀ ਦਾਸਨ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤੇ ਆਦਰ ਨਾਲੇ। गावे से समाधि अंदर गावन साध विचारे। ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ संतोखी गावे वीर करारे। गावन पंडित पढ़न रखी सा जुग जुग वेदा नाले। गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मछ प्याले। गावन रत्नो पाए तेरे 68 तीरथ नाले। गावे जोत महाबल सुरा गावे खानी चारे। गावे खंड मंडल वर भंडा कर रखे तारे। सही तुधनो गावे जोत भावन रते तेरे भगत रसाले। और केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई। है भी होसी जाए न जासी रचना जे न रचाई। रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन पाई। कर वेखे कीता अपना जीव तिस दी वड्याई। जो तिस भावे सोई करसी हुक्म न करना जाई। सो पासा सा पास है नानक रैन रजाई। मुंदा संतोख शरम पर झोली ध्यान की करे विभूत। चिंता काल कुआरी काया जुग दंडा प्रतीत। आई पंथी सगल जमाती मान जीते जग जीत। आदेश तिसे आदेश आद नील नाद नाह जुग जुग एको वेश। भोग ज्ञान दया भंडारन घट घट वाजे नाद। आप नाथ नाथी सब जाकी रित से दवरा साध। संजोग विजोग दे कार चलावे लिखे आवे भाग। आदेश तिसे आदेश आद नील नाद नाह जुग जुग एको वेश। एका बाई जुगत वे आई तिन चेले परवान। एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान। जिव तिस भावे तिवे चलावे जिव होवे फुरमान। ओ वेखे ओना नदर नावे बहुता ए विडान। आदेश तिसे आदेश आद नील अनाद अनाद जुग जुग एको वेश। आसन लोए लोए पंडार जो किस पाया सो एक कावार। कर कर वेखे सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसे आदेश आद नील नाद नाह जुग जुग एको वेश। एक दो जीवो लख होए लख होवे लख वीस। लख लख गेड़ा आखी एक नाम जगदीश। एक राह पत पड़ी चढ़िए हुए अकीस। सुन गल आकाश की कीटा आई दीस। नानक नजरी पाइए कूड़ी कूड़े ठीस। आखन जोर चुपे न जोर जोर न मंगन दे न जोर। जोर न जीवन मरण है जोर जोर न राज माल मनसोर। जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुक्ति छुटे संसार। जिसहा जोगर विखे सोए नानक उत्तम नीच न कोए। राती रुते थिते वार पवन पानी अग्नि पताल। इस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। इस विच जीव जुगत के रंग। तिनके नाम अनेक अनंत कर्मी कर्मी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार। जिथे सोहन पंच परवान नजरी कर्म
ਕਰਮ ਪਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੇ ਜਾਏ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ। ਕੀਤੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਕੀਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼। ਕੀਤੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਘਾਟ ਘੜੀਏ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ਼। ਕੀਤਿਆਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ, ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਤੂੰ ਉਪਦੇਸ਼। ਕੀਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ, ਕੀਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ਼। ਕੀਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ, ਕੀਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ਼। ਕੀਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨ, ਕੀਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ। ਕੀਤਿਆਂ ਖਾਣੀ ਕੀਤਿਆਂ ਬਾਣੀ, ਕੀਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ। ਕੀਤੀਆਂ ਸੁਰਤੀ ਸਿਵਕ, ਕੀਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਤਿੱਥੇ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੌੜ ਆਨੰਦ। ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ, ਤਿੱਥੇ ਘਾਟ ਘੜੀਏ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ। ਕਾਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੇ ਪਛਤਾਏ। ਤਿੱਥੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਤਿੱਥੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਾ ਸਦਾ ਕੀ ਸੁਧ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, ਤਿੱਥੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਤਿੱਥੇ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਤਿਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਤਿੱਥੇ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮੈਂ ਮਾਮਾਏ, ਤਾਕੇ ਰੂਪ ਨਾ ਕਤਨੇ ਜਾਏ। ਨਾਉ ਮਰੇ ਨ ਠਾਗੇ ਜਾਏ, ਤਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੇ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਤਿੱਥੇ ਭਗਤ ਵਸੇ ਕੇ ਲੋਕ, ਕਰਿਆ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਤਿੱਥੇ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ, ਜੇ ਕੋ ਕਥੇ ਤਾ ਅੰਤ ਅਨੰਤ। ਤਿੱਥੇ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ, ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ। ਵੇਖੇ ਵਿਕਸੇ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਤਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਜਤ ਪਹਾੜਾ ਤੀਰਥ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਮੋ ਕੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤੋ, ਪੜਦਾ ਪਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਢਾਲ। ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸਚੀ ਟਕਸਾਰ, ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਹਿਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ। ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ, ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ। ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ, ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सच, बार बार सच का नाम आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह का उच्चारण किया हुआ ये शब्द है।
कहते हैं मैंने बहुत लोग देखे जो कहते हैं कि हमारे हृदय में परमात्मा प्रकट हो चुका है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, मैं ऐसे बहुतों से मिला हूं जो कहते हैं हमारे हृदय में सच प्रकट हो चुका है। सच का भाव होता है परमात्मा नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर गुरु नानक पातशाह कहते हैं सब झूठ बोलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु नानक पातशाह निशानियां बता रहे हैं कि अगर जिसके हृदय में सच प्रकट हो जाए उसकी निशानियां क्या हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ताकि हम मूर्ख न बन जाए, हमें समझा रहे हैं। कोई कहे मैं संत हूं, मेरे हृदय में नाम चलता है। कोई कहे कि मैं भगवान को मिल चुका हूं। गुरु नानक पातशाह कहते हैं मैं तुझे निशानियां बताता हूं, खास करके 2 निशानियां। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर उसके हृदय में सच प्रकट हो चुका होगा, जिसके भी हृदय में सच प्रकट हो चुका होगा, तो ये 2 निशानियां जरूर होंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संत हरनाम सिंह जी महापुरुष रामपुर खेड़े वाले अपने कमरे में बैठे हैं, अपने स्थान पर। गर्मी की रुत है, दोपहर, अत की गर्मी है दोपहर को, तो सहन ना हो बाहर निकलना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनकी नजर बाहर पड़ी। कहां पर? बाहर खेत हैं जहां पर किसान अपनी फसल उगाते हैं। क्या देखते हैं कि एक किसान हल चला रहा है, 2 बैल बंधे हुए हैं आगे। सुबह से हल चला रहे, दोपहर हो गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बैलों की हालत ज़बानें बाहर निकली हुई हैं, प्यास से बहबल हो रहे हैं, ज़बानें लटक रही हैं। वो डंडे मार मार कर जबरदस्ती चला रहे, थक चुके हैं, चूर हो चुके हैं, थक कर बैल आराम नहीं दे रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब डंडों की मार से बचने के लिए बैल बेचारे चल रहे हैं, पर जब भी वो यू टर्न लेकर वापस आते हैं, महापुरुषों का ध्यान उनके मुख की तरफ जाता है। बार बार जाते हैं बैल, बार बार आते हैं हल, क्योंकि खेत जोत रहे हैं। महापुरुषों से देखा ना गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उठकर बाहर आ गए, तरस आ गया, दया आ गई। हल चलाने वाले किसान से कहने लगे कि भाई थोड़ा आराम करने दे, इन्हें पानी पिला दे, सुबह से चल रहे हैं, ज़बानें बाहर लटक गई हैं, तो डंडे मार रहे हैं, इन्हें दर्द हो रही होगी। कहने लगे इन्होंने तो कोई बुरे कर्म किए जिसकी सजा इन्हें मिल रही है। बेचारे सजा काट रहे हैं अपने किए हुए कर्म की, पर हमें तरस आना चाहिए उन पर, क्योंकि अगर हम तरस नहीं करेंगे हमारे कर्म बन जाएंगे, अगली बार हम बैल बनकर आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों ने उसे समझाया, पर वो कहने लगा महापुरुषों, किसान को अपना काम करने दो, आप अपना काम करो, बैठकर नाम जपो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष ऐसा सीधा जवाब सुनकर वापस चले गए। संत हरनाम सिंह जी संत हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वाले ऐसे महापुरुष हुए साथ संगत जी, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से बातें करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई भी कोई सवाल लेकर आता, कुछ भी पूछता तो सीधा जवाब ना देते, कहते गुरु साहिब जी से पूछकर बताएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जो वो बताते 100% राइट होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बैठ गए अंदर जाके अपने कमरे में, पर ध्यान वही है। बैलों को देखकर चैन नहीं आ रहा कि बेचारे थक चुके हैं, प्यास लगी, कम से कम पानी तो पिला दे उसे। आधा घंटा देखते रहे, फिर रहा नहीं गया, फिर बाहर चले गए। हाथ जोड़कर कहने लगे चलो मेरे लिए ही सही, हमारी थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर, मेरे कहने पर इन्हें पानी पिला दे, थोड़ी देर आराम दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर इस बार उस किसान को लिखा हुआ इतिहास में कि सबसे ज्यादा फसल
इसकी होती थी उस गांव में। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे बढ़िया खेत इसके, सबसे ज्यादा फसल इसकी, और एक बार नाम हो जाए इंसान का तो वो लगा रहता है और अच्छी और अच्छी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बड़ा क्रोध में बोला कि मेरे बैला में जैसे मर्जी चलाऊं, आपको क्या, आप जाके अपना काम करो। महापुरुषों का हृदय दुख गया, कुछ कर नहीं सकते, जाकर बैठ गए, पर मन से बड़े उदास हुए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मुंह से वचन निकल गए मुखारबिंद से कि मेहनत करने से फसल ज्यादा नहीं हो जाती, गुरु की कृपा से होती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तुझे इन पे तरस नहीं आ रहा, गुरु को तुझ पे कैसे तरस आएगा, कह के महापुरुष चले गए। उस साल जब फसल हुई, इस किसान की जिसकी सबसे ज्यादा फसल होती थी, इसकी सबसे कम फसल। फसल तो होगी पर अंदर दाने हैं ही नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतना नुकसान, इतना नाम भी खराब हुआ, नुकसान भी हुआ। और ये बैल जब ये शाम को घर लेके गया, एक बैल तो बीमार पड़ गया बहुत ज्यादा, दूसरा थक के चूर होकर मर गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वो नुकसान हुआ अलग, महापुरुषों के मुखारबिंद से वचन। अब ये बैठा है अपने घर वालों के साथ, परिवार के साथ। इसके पिताजी इससे पूछते किसान के कि ये कैसे हो गया इस बार, हमारी धरती भी सबसे उपजाऊ है, हल भी तूने बहुत चलाया, फसल भी बहुत बढ़िया हुई, अंदर दाने ही नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इस लड़के को थोड़ी थोड़ी सी समझ हो गई थी कि गलती हुई है मुझसे। किसान को अपने पिताजी से सारी बात बताई कि संत हरनाम सिंह जी आए थे, मुझे 2 बार टोका था कि बैलों को थोड़ा आराम दे दे, पर मैंने बात नहीं मानी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके पिताजी वो जानते थे संत हरनाम सिंह जी कौन है, सीधा पकड़कर उसे महापुरुषों के चरणों में ले गए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। संत हरनाम सिंह जी कहने लगे, भाई मैंने कुछ नहीं कहा ना मैंने कुछ किया, ये तो परमेश्वर देखता है जब हम जीव पे तरस नहीं करते। ये तो परमेश्वर की कृपा है, किसको कहाँ रखा है, कोई मालिक है कोई नौकर है, उसकी मर्जी, नौकर को मालिक बना दे, मालिक को नौकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डर के रहना चाहिए। संत हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वाले कहने लगे, पशु से उतना ही काम लो जितनी उसकी समर्था है, बार बार जबरदस्ती डंडे मत मारो, उसके अंदर भी आत्मा है, वही दुख दर्द वो महसूस करता है जो हम करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुमत बख्शी उन्होंने यहाँ पर ये जो हम शब्द पढ़ रहे हैं साथ संगत जी, गुरु नानक पातशाह कहते हैं, जो कहता है मेरे भीतर सच प्रकट हो गया, कहते हैं 2 निशानियां, पहली दया जाने जी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर तो उसके भीतर नाम प्रकट हो गया है, प्रभु का वास है उसके हृदय में, उसके भीतर दया जरूर होगी। दूसरे का दर्द अगर अपना दर्द नहीं लगता, दूसरे की तकलीफ अगर अपनी तकलीफ नहीं लगती, तो गुरु नानक पातशाह कहते हैं नाम रत्ती भर भी उसके हृदय में नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुनिया चाहे संत कहे, महापुरुष कहे, दुनिया चाहे, गुरु नानक पातशाह कहते हैं मेरी नजरों में वो इंसान भी नहीं जिसके हृदय में दया नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं हैरान हो रहा था कि कितने दिनों से प्रकरण चल रहा है, रोज दया की बात ही आ जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई भी प्रकरण ले लो, बात आखिर खत्म दया पर आकर हो रही, कोई तो कारण है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दया जाने जी की किछ पुण्य दान करे। अगर हृदय में दया नहीं है, किसी की तकलीफ देखकर खुद को तकलीफ नहीं होती है। महापुरुष समझाया करते थे, कहते थे कोई सुबह से लेकर रात तक दुकान पर बैठा रहे, मेहनत करता रहे, शाम को जब हिसाब लगाए नुकसान निकले, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, उदास हो जाता है मन, पूरा दिन की मेहनत वेस्ट हो गई, कहाँ नुकसान हुआ, कहाँ गलती हुई, ढूंढता है। कहते हैं जो सत्संग करते हैं, जो नहीं करते उनकी बात नहीं कर रहे। महापुरुष वचन करते थे, जो करते हैं सत्संग, ध्यान देना, जो सत्संग करते हैं, अमृत वेले उठते हैं, नाम जपते हैं, सेवा करते हैं, पर अगर अभी तक भीतर में दया नहीं आई ना, तो कहते थे रो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि कहीं तो कोई गलती हो रही, बहुत नुकसान हो रहा है, कमाई फलीभूत नहीं हो रही, नाम जप के संगत करके अमृत वेले उठकर अगर भीतर दया नहीं जागी,
तो कहीं कोई गलती हो रही है, ढूंढो बैठकर, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि सत्संग करने के भी ढंग होते हैं। 4 प्रकार के दास बहुत बार बता चुका है बात। ऊंगे सूंगे चुंगे डूंगे 4 प्रकार के सत्संगी होते हैं। एक तो यहाँ पर आके सो जाते हैं ऊंगे, जैसे आते हैं वैसे खाली चले गए। एक सूंगे यहाँ पर आते हैं, पर ध्यान क्या होता है, किसने क्या पहना है, कौन क्या कर रहा है, कौन सी मिस्टेक है, बैठ के ढूंढे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे कहते हैं सूंगे, आए तो थे, अपना थोड़ा नुकसान करके चले गए, लेके कुछ नहीं गए, क्योंकि ध्यान सत्संग में है ही नहीं। तीसरे प्रकार के होते हैं चूंगे, जो केवल मिस्टेक ढूंढते हैं, कोई गलती मिल जाए सही, उसे वायरल करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी वचन करते थे, ऐसे सत्संगी जो आकर गलतियां ढूंढते हैं, इससे अच्छा ना आए, क्योंकि वो आते तो कुछ लेने हैं, अपना सब कुछ गवा कर चले जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चौथे प्रकार के होते हैं डूंगे गहरे, जो यहाँ पर बैठकर विचार सुनते हैं, वाणी की पंक्तियों को पीते हैं, अमृत को पीते हैं, और घर में जाकर विचार करते हैं उन्हीं पंक्तियों पर कि क्या सुना था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं केवल ऐसे सत्संगी ही लाभ उठाकर जाते हैं चौथे प्रकार के। गुरु को अरदास करना अगर अभी तक हृदय में दया नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को मैं देखता हूँ बिना मतलब जानवरों को मारते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब सब जानते होंगे अपने अपने दिल की बात। दया दया भी कई प्रकार की होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहते हैं दया भी 2 प्रकार की होती है, एक नकली दया, एक असली दया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और 2 पंक्तियां पढ़े, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। दया जाने जी की, दया जाने जी की, दया जाने जी की, किछ पुण्य दान करे। दया जाने जी की, किछ पुण्य दान करे। ओ दया जाने जी की, किछ पुण्य दान करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 2 प्रकार की दया, ये भी गुरु नानक पातशाह कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक नकली एक असली। नकली कैसे, बड़ी ध्यान से समझना इस बात को। कई बार होता क्या है, हम क्या कर रहे होते हैं हमें पता ही नहीं होता। उसकी वजह पता है क्या है? दास बहुत बार ये बात कहता है, हम सारा दिमाग धंधे में लगा देते हैं, परमार्थ की तरफ थोड़ा सा भी दिमाग लगाने को तैयार ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिजनेस की बात करो, हजारों आइडियाज है एक एक के पास, पर परमार्थ में ऐसे ऐसे सवाल आके पूछते हैं जैसे नर्सरी के बच्चे हों। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नकली दया। कई लोग गाय को खाना खिलाने जाते, रोटी खिलाने जाते। ध्यान देना, बात को बड़ी गहराई से लेना, दूसरी तरफ मत ले जाना। मैं गाय को खिलाने से मना नहीं कर रहा हूं, जाओ, रोज जाओ, गौशाला में खिलाओ, जितना हो सके उतनी सेवा करो। पर गाय को खिलाने जा रहे, रास्ते में कुत्ता भूखा मिले उसे नहीं खिलाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गाय को ही खिलाने जाना है, उसकी वजह क्या है? पुण्य मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी दया के पीछे स्वार्थ खड़ा है कि हमें क्या मिलेगा खिलाने के पीछे, जबकि दया का भाव होता है सिर्फ देना, लेना कुछ भी नहीं। मैं नहीं कहता, गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ समय पहले की बात है, दास गार्डन में वॉक कर रहा था, एक आदमी बिस्किट का पैकेट लेके घूम रहा है। इतने सारे कुत्ते उसके पीछे पड़े, उनको नहीं खिला रहा, बड़ी देर से ढूंढ रहा है। मैं समझ गया, मुझे पता है यहाँ का सिस्टम। मैंने कहा काला कुत्ता ढूंढ रहे हो? कहने लगा हाँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी बाबा ने बोला होगा काले कुत्तों को खिलाना, कहने लगा हाँ, आपको कैसे पता? बोले मैं यहाँ जानता हूँ क्या होता है। वो ढूंढ ढूंढ के काले कुत्ते को ही खिला के गया, बाकी सब कुत्ते उसके पीछे ढूंढते रहे।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये कैसी दया है मुझे बताइए। उसे उसकी भूख से मतलब नहीं है, उसे अपने स्वार्थ से मतलब है। मेरा काम किससे सिद्ध होता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता पिता वृद्धाश्रम में हो, घर में बैठे हो भूखे, बाहर जाकर हम दान पुण्य करें, पातशाह कहते हैं नकली दान है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खुद विचार करो हम कहां खड़े हैं। हमारे दान के पीछे स्वार्थ खड़ा है। अगर दान देने के पीछे ये भावना है कि कुछ मिलेगा, चाहे नाम हो चाहे धन हो, पातशाह कहते हैं कैसा दान? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए क्या कहती है बानी। मां प्यो पर हर करे दान, बेईमान अज्ञान परानी, बेईमान अज्ञान प्राणी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। माता पिता की सेवा छोड़कर बाहर जाकर दान करता फिरता है। पातशाह कहते हैं बेईमान है वो, अज्ञानी भी है, बेईमान भी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मां प्यो पर हर करे दान, बेईमान अज्ञान प्राणी। बड़े ध्यान से इस बात को समझना साध संगत जी। दो प्रकार के दानी होते हैं, पातशाह कहते हैं। एक जो देकर, जिन्हें देकर है, देना के नाम सुनकर ही मन को शांति आ जाती कि मुझे देना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दान की भावना आते ही किसी को देना है, किसी को देने की मन कर रहा है, सुनकर ही कि दान करना है, उसका मन में खुशी जाग जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पातशाह कहते हैं, गुरु नानक पातशाह कहते हैं ये है असली दानी, क्योंकि देने की भावना है। दूसरा कौन है? दे दे मंगे सहसा गुण। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देने के पीछे दो भावनाएं उसकी, एक तो संसार देखे कि मैंने दिया है, और दूसरा कि गुरु 1000 गुना वापस देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहते हैं ना, तू 1 पैसा देगा वो 10,000 देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो गाना जिसने बनाया है, हम जैसे लोगों को देख के ही बनाया है कि लालची लोग हैं, 1 पैसे के बदले 10,000 बोलेंगे तभी वो देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और यही लालच गुरु नानक पातशाह ने भी पकड़ ली हमारी, कि अमृत वेले एक बार वाहिगुरु कहो 10,000 बार का फल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं, प्रॉफिट जहां ज्यादा दिखेगा वो काम करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बानी कहती है, श्रवण कीजिए। सतिया मन संतोष उपजे, देने के विचार, दे दे मंगे सहसा गुणा, सोग करे संसार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सतिया मन संतोष उपजे। सतिया का है दानी को। दानी को जब पता चलता है ना कि दान देने का समय आ गया, कोई किसी की जरूरत पूरी कर सकूंगा मैं, उसके मन में शांति, प्रेम, संतोष उपज जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रसन्न हो जाता है वो। असल में दास एक बात कहेगा यहाँ पर, कोई समझे तो। स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा था कि मन उदास रहता है, सब कुछ है भगवान ने दिया हुआ, मन उदास रहता है, खुशी नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया, खुशी चाहते हो तो खुशी बांटो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देकर देखो, दिवाली आ रही है, अपने आसपास नजर मारो। सबसे ज्यादा खुशी पता आपको कब होगी? ये मेरा जाती तजुर्बा है। सामने वाला बहुत जरूरतमंद है, आपको पता है, और उसे उम्मीद भी नहीं कहीं से कुछ मिलेगा, तकलीफ में है, छिपा कर जाकर रजाकर उसे दे दो। वो खुशी का वो नशा आपको इतने दिनों तक रहेगा ना, इतने दिनों तक रहेगा, मैं बयान नहीं कर सकता आपको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। करके देखो। जो लोग डिप्रेशन में हैं, उदास रहते हैं, बेमतलब परेशान रहते हैं, यहाँ पर सुबह लंगर की गाड़ी जाती है, शाम को जाती है, 5 बजे गुरुद्वारे में से निकलती है। जहां जहां गरीब जरूरतमंद लोग हैं वहां पर गर्म खाना पहुंचाया जाता है।
केवल जाकर सेवा करके आओ साथ में एक दिन, केवल। दास 100% गारंटी से कहता है गुरु साहब जी की हजूरी में, गुरु साहब जी की कृपा से मन इतना शांत हो जाएगा, मन सिर्फ शुक्राने से भर जाएगा। जो उदास है, जो डिप्रेशन में है, मन शुक्राने से भर जाएगा, पाछा तूने इतना दिया है। क्योंकि जब देखेंगे ना, एक डोना लेने के लिए बच्चों की आंखों में इतनी खुशी है, शुक्राना निकलेगा, भगवान ने इतना कुछ दिया, हम ना शुक्राने हो चुके हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मैं नहीं कह रहा, गुरु की बाणी कह रही है। सतिया मन संतोख उपजे, देने के विचार, देने का विचार ही आने से मन में शांति आ जाती है, संतोख आ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये गुरु नानक पातशाह कहते हैं पहली प्रकार के दानी। दूसरे प्रकार के, दे दे मंगे सहसा गुणा, देते हैं 1000 गुना भगवान से मांगते हैं कि मैंने दान किया उसका फल दे, और दुनिया से कहते हैं हमारा सत्कार करो, हम इतने दानी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने बोर्ड लगवाते हैं, नाम लिखवाते हैं, ये उनकी बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास अक्सर कहता है कि लोगों को नाम लिखाने का इतना शौक होता है, पंखे के जो पंख होते हैं ना, उस पर भी नाम लिखवाते हैं, वो चलेगा तो दिखेगा भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि फलाने ने दान दिया है, इसकी माता के स्वर्गवास का दान, इसके पिता के स्वर्गवास का दान। किसे बता रहे हैं? एक तरफ हम कहते हैं अंतर्जामी, एक तरफ इसे नाम सुना सुना के कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई मर्दाना जी, अब 2 पंक्तियां पढ़ ली। दया जाने जी किछ पुण्य दान करे, दया जाने जी किछ पुण्य दान करे, दया जाने जी दया जाने जी किछ पुण्य दान करे, दया जाने जी किछ पुण्य दान करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह यहाँ पे बड़ी प्यारी बात समझाते हैं। गुरु नानक पातशाह भाई मर्दाना जी गुजर रहे, देखा एक वैष्णव साधु भोजन पका रहा है रसोई में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो प्याज लहसुन भी नहीं खाते, जमीन से जड़ वाली चीज नहीं खाते, किसी जीव हत्या ना हो जाए, कीड़े ना मर जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मर्दाना कहते हैं, भाई मर्दाना जी कहते हैं पातशाह भूख लगी है। कहने लगे वो भोजन बना रहे हैं, जाके थोड़ा मांग ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई मर्दाना जी उसके रसोई में चले गए कि कुछ खाने को दे दो। वो इतना क्रोधित हो गया कि रसोई में पांव कैसे रखा, सुचमता मेरी खराब हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग होते हैं ना ऐसे कि रसोई में पांव नहीं रखना है, कि हमने सुचमता रखी, कोई दूसरा नहीं आ सकता यहाँ पर, कौन सी जात का पता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस जमाने में ये बहुत ज्यादा था। वो ब्राह्मण देवता, वो वैष्णव साधु, बड़ी लकड़ी चूल्हे में लगी हुई थी जिसमें आग जल रही थी, सबसे बड़ी लकड़ी उठाकर भाई मर्दाना जी को मारने के लिए भागा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई मर्दाना जी भागकर बाहर आ रहे हैं, वो पीछे लकड़ी लेके भाग रहा है। गुरु नानक पातशाह देख के मुस्कुरा रहे हैं, कहने लगे मेरी बात सुन हे वैष्णव साधु, तू तो वो है जो लहसुन और प्याज भी नहीं खाता और एक आदमी को जिंदा जलाने जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सब दिखावा नहीं है। गुरु नानक पातशाह ने यहाँ पर बड़ा प्यारा शब्द उच्चारण किया, समय नहीं है। समझने की बात यह है, हमारा जीवन दिखावे से भरा पड़ा है,
दिखावे के लिए यात्रा, कई लोग तीर्थ यात्रा पे सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि लोगों में जाके शेखी बकार सके। हम इतने तीर्थों पर होके आए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर भावना ये है तो कोई फायदा नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात। एक बड़ी प्यारी जुक्ति है, इसे समझ लो। कोई कर सके तो कर लो। बाबा नंद सिंह जी के वचन है, जो चीज दिखाओ वो कम होती है, जो चीज छिपाओ वो बढ़ती है। ये कुदरत का नियम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब दिखाओ मेरे पास बहुत पैसा, मांगने वाले आ जाएंगे, कम हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब छिपा के रखो, बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार अपने अवगुणों को हम छिपाते हैं, गुणों को दिखाते हैं, इसलिए तो हमारे अवगुण बढ़ते हैं और गुण कम होते जाते हैं। जिस दिन हमने अपने अवगुण दिखाने शुरू कर दिए, गुणों को छिपाना शुरू कर दिया, गुण बढ़ जाएंगे, अवगुण खत्म होने शुरू हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने अवगुणों को जाहिर करने के लिए हिम्मत चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी तो यहाँ तक वचन करते थे, कोई आदमी माइक पकड़ कर संगत में अपने सारे अवगुण बता दे, कहते थे उसे सारे अवगुणों की माफी मिल जाती है उसी क्षण। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर हिम्मत चाहिए। कोई नहीं बोल पाता कि मैं ऐसा हूं, मैं शराबी हूं, चुप के पियेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं प्राय स्त्री को बुरी नजर से देखता हूं, कौन कहेगा उठकर यहां पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक छोटी सी घटना सुनाकर समाप्ति करता है दास, क्योंकि समय हो गया है। एक बात फिर दास अनाउंस कर दे यहाँ पर कि इंडिया टीवी पर अब इस प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा 5 बजे, उसके बाद यूट्यूब पर चलता रहता है। अमृतवेला ट्रस्ट टाइप करके आप सुन सकते हैं। और दूसरा, मुझे सेवादारों ने कहा था रेडियो के बारे में फिर से एक बार, एप्लीकेशन है अमृतवेला ऑफिशियल, उसे डाउनलोड कर लीजिए अपने फोन पर, अमृतवेला ऑफिशियल। उसमें 24 घंटे रेडियो चलता है। आपके पास नेट कम भी होगा, डाटा कम भी होगा, कम स्पीड वाला भी होगा, तो भी आप कीर्तन 24 घंटे सुन पाएंगे गुरु की मेहर से। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बड़ा ही कमाई वाला पीर हज की यात्रा पे जा रहा है। रात को कमाई बहुत थी उसकी, इस वक्त मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। वो हज की यात्रा पे जा रहे हैं, बहुत सारे उसके शागिर्द उसके साथ में, लाखों लोग हज करते हैं हर साल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब ये जा रहा है तो रास्ते में जब जहां आराम किया, इसने सपने में देखा कि 2 फरिश्ते आपस में बात कर रहे हैं। एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते से पूछता है कि कितने लोग आए हज में इस बार, तो उसने कहा इतने लाख लोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो दूसरा सवाल पूछता है कि हज कितनों का कबूल हुआ, अल्लाह ने किसकी इबादत कबूल की? वो कहने लगा केवल एक की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगा वो कौन है? कहने लगा फलानी जगह पे एक मोची रहता है, उसका हज कबूल हुआ है, केवल उसका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आंख खुल गई पीर की, राह मिल गया था, एड्रेस भी पता चल गया था, सीधा चल पड़ा वहां पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जाकर पता करके उस मोची के पास पहुंच गए। छोटी सी टूटी फूटी दुकान है, मोची बैठा चप्पलें बना रहा है। लोग टूटी हुई चप्पल लेकर आते, वो बना रहे हैं। पीर ने जाके सीधा उसके पैर पकड़ लिए, कहने लगा मुझे बता, लाखों लोगों में केवल तेरा हज कबूल हुआ है, तूने इबादत किस प्रकार करता है? रात को कितने बजे उठता है, कितने बजे भजन करता है, कितने बजे बैठकर कितनी बार नमाज पढ़ता है, क्या करता है, कौन सी तस्बीह फेरता है, कितने कलमा पढ़ता है, सब मुझे पता है। मैं भी वही करूंगा ताकि मेरा हज कबूल हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो मोची जोर जोर से रोने लगा, कहने लगा हज, मैं तो हज पर जा ही नहीं पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई सालों से मैं थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रहा था कि मैं हज पे जाऊंगा। मैंने जमा किए पैसे हज के लिए, यात्रा के लिए। कल मैं निकला था हज के जाने के लिए, रास्ते में बरसात हुई, एक झोपड़ी का आसरा लिया मैंने बरसात से बचने के लिए। रात का समय था, झोपड़ी के साथ लगा बैठा था, अंदर से रोने की आवाज आई, मेरे कान अंदर गए, ध्यान दिया, ध्यान से देखा तो एक छोटा सा बच्चा अपनी माता को लिपटा हुआ है, दोनों रो रहे हैं क्योंकि छत के ऊपर से पानी गिर रहा है। और वो बालक कहता है माता को, हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं, कपड़े हमारे फटे हुए, उसके पैसे नहीं, अब ये छत, बारिश हो गई है, छत भी टूट गई है, हमारा क्या होगा माता? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
वो मोची कहने लगा, इतना ऐसा दृश्य देखकर कि बच्चा रो रहा है, इनके पास खाने को पैसा नहीं, छत भी टूट गई है, मैं हज के लिए आगे बढ़ ही नहीं पाया। जो भी मैंने रकम जमा की थी मैंने खुदा से माफी मांगी, फिर कभी आ जाऊंगा हज पे, और ये सारा धर्म मैं उनको देकर वापस आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं तो हज कर ही नहीं पाया। वो पीर कहने लगा, तूने मुझे बता दिया कि हज क्या होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खुदा की नजरों में तेरा ही हज परवान हुआ है, बस तेरा, बाकी किसी का नहीं। लाखों लोग गए हैं वहां पर, क्योंकि तूने एक गरीब जरूरतमंद की उस वक्त मदद कर दी, अपना सारा धन दे दिया जब उसे बहुत जरूरत थी, तूने दान कर दिया उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लाखों लोग गए, उनका हज कबूल नहीं हुआ, पर इस मोची का हज कबूल हो गया। क्यों? दया जाने जी की दया आ गई इसमें, और देने के पीछे कोई लालच नहीं कि वापस मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस गुरु मेहर करे ये भावना हम में जाग जाए, देने की, देकर वापस लेने की नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देकर शोभा कराने की नहीं, केवल देने की निष्काम भावना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा दो प्रकार की होती है। कई लोग कहते हैं कि, जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई साहब निष्काम कीर्तन करते हैं, इसको निष्काम कीर्तन नहीं कहते। बाबा नानक सिंह जी कहते थे निष्काम वो होता है जिसकी कोई कामना ना हो, केवल बिना पैसे के कीर्तन करना, यह निष्काम कीर्तन नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक पैसा नहीं लेकर करोड़ों मांगते हैं गुरु से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किस बात की निष्कामता? निष्कामता कोई कामना ना हो, कोई कामना ना हो। जब देने के पीछे कोई कामना, कोई भावना, कोई स्वार्थ नहीं, वो है दया जाने जी की। सच ताप पर जानी है, उसके हृदय में सच प्रकट हो गया है। और दो पंक्तियां पढ़े फिर समाप्ति करते हैं। गुरु मेहर करे, प्रकरण तो और भी बहुत बड़ा है, फिर कभी ले लेंगे। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बस इतनी सी बात समझ में आ जाए कि गुरु नानक पातशाह कहते हैं, जिसके भीतर दया नहीं, जो जानवरों को मार कर खाते हैं। एक समय केवल खाने के लिए, साथ संगत जी, एक समय भोजन खाने के लिए, जबकि हमारे पास ऐसा नहीं है कि मजबूरी है कोई, कि खाने को कुछ है नहीं। एक बार में वो भी माफी मांग, गुरु माफ कर दे जिसको मजबूरी हो। ऐसे देश है जहां पर सब्जियां है ही नहीं, ऐसी ऐसी जगह भी है मजबूरी में किसी को खाना पड़ता है। हो सकता है गुरु से माफ कर दे क्योंकि मजबूरी है। हमारे पास तो 36 वैरायटी है अलग अलग। फिर अपनी जबान के स्वाद के लिए केवल पशुओं को मार मार कर नोच नोच कर खाएं, और फिर कहें बात करें दया की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किस बात की दया? वो तो भूल ही जाए गुरु उन पे कभी तरस करेगा जो मांस खाते हैं। भूल ही जाना कि कभी, क्योंकि बानी कहती है, कबीर जी कहते हैं, कबीर पांग मछली सुरापान जो जो प्राणी खाए। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं कहा, जो जो प्राणी खाए तीर्थ व्रत नेम किए ते सबे रसातल जाए। चाहे वो तीर्थों पे चला जाए, चाहे वो नेम कर ले, चाहे दान पुण्य कर ले, जो मर्जी कर ले, उसका सब कुछ किया हुआ व्यर्थ जाने वाला है, वो नरकों में ही जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बाणी कहती है, मैं नहीं कह रहा। अगर अपने जबान पे स्वाद पर काबू नहीं कर पाए, जरा विचार करके देखो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर खाक काबू करेंगे? एक जबान के स्वाद पर काबू नहीं कर पाए। सबसे छोटा स्वाद है जबान का स्वाद। इसके ऊपर तो कई रस हैं, काम रस, इसके ऊपर तो कुछ है नहीं। अगर जबान के रस पे काबू नहीं है तो काम वासना पर क्या खाक काबू कर पाएंगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, सुमत बख्शे, कृपा करे। इसके लिए तो बैठे हैं, उसका तरस आ जाए। नहीं खत्म हो रहे ये गुनाह, अरदास करो पातशाह बख्श दे, तू तरस कर, मेरे से नहीं खत्म हो रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरदास तो कर सकते हैं कि पातशाह मुझे एहसास हो गया मैं गलत हूं, अब तू तरस कर दे, तू तरस कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सचता पर जानिए जे सिख साची ले, सचता पर जानिए जे सिख साची ले, दया जाने जी की किच पुण्य दान करे।
एक छोटी सी बेनती की संगत उठ रही है इसलिए बीच में कि कल गुरु रामदास जी का अवतार पुरब है। साथ संगत जी भूल मत जाना, बहुत बड़ा दिन है। तो कल सब सारी संगत से बेनती कि वाइट ड्रेस पहनकर है सारी संगत, और बाहर से सेवादार रुमाल लेकर खड़े रहेंगे अमृत वेला के, सब वही बांध कर बैठना। दास की हाथ जोड़कर बेनती है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माताओं के चरणों में बेनती है कि वाइट कपड़े, गुरु मेहर करे, गुरु नानक मेहर करे, क्योंकि अलग ही दृश्य होता है वो गुरु रामदास जी गुरुपुरब का ना। सब वाइट कपड़े पहने होते हैं, ऐसा लगता है हाँ गुरु का दिन मनाने आए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दया जाने जी की किछ पुण्य दान करे, दया जाने जी की किछ पुण्य दान करे, दया जाने जी की किछ पुण्य दान करे, दया जाने जी 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 किछ पुण्य दान करे, किछ पुण्य दान करे, किछ पुण्य दान करे। दया जाने जी किछ पुण्य दान करे, दया जाने जी किछ पुण्य दान करे, किछ पुण्य दान करे, किछ पुण्य दान करे। कवि आवाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ, पूर्ण भय चित की इच्छा तब चंदन मन रहे। हमरी करो हाथ दे रक्षा, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूरन होए चित्त की इच्छा, पूरन होए चित्त की इच्छा, पूरन होए चित्त की इच्छा, पूरन होए चित्त की इच्छा। तब चरना ने मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सबे तुम कारो, आप हाथ दे मोहे बचाओ। सुखी बचे मोरो परिवार सेवक सिख सब करतार, और अच्छा निज कर जय करिए सफल उपवास करिए। पूर्ण होए हमारी आशा, छोड़ पूजन की है प्यासा। मैं छाड़ कोई अवर न ध्यान, जो पर जाऊं सब दे पाऊं। सेवक सिख हमारे कार्य, चित्तों सतर हमारे कार्य। आप आते मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास न करिए। पूजो सदा हमारे बच्चा श्री अस्तु जो करे।
राख लो मोह राखना रे साई संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्ट के हता वो पुरी चक्र दस कंता काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए सतगुरु अवतरा काल पाए कर विचर प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव की रो मेरा ब्रह्मा जोगी जवन काल सब लोग सवारा नमस्कार है ताय हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत्य दक्षिण लोक जायो आदंत एक अवतारो श्री गुरु संजो हमारा नमस्कार तिसे ही को हमारी सकल प्रजा जन आप सुहारी सिरकल को सिर को सुख दियो सतर को पर मोहब्बत की कट कट के अंतर के जानत भले बुरे के पीर पछानत चीटी ते कुल चरस बोला हरि कृपा दुष्ट बोला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर बचाने कट कट के पट पट की जाने जब उद कर्क करा करता प्रजा दर्द तब देह अपारा जब आ कर्क करत हो कब हो तुम मैं मृत देह तर सब हम जे जे बदन से सब तारे आपारी हो तुम सब ही तेरे तन डाला जानत भेद भेद निरंकार निरंकार निर्नाम राग नीलनाद संग ताका मूड चारत भेदा जाको पेव न बावद भेदा ताको कर्पान अरमान महामूड कछ भेद न जानत महादेव को मैं किस दर्श निरंकार का जीनत न आप अपनी बुध है जेते वर्णन में तुमरा लखा न जाए पसारा के बिल सजा प्रथम संसारा एक रूप रूप स्वरूप रंग पयोरा कई अंडज जेरज सेतज कीनी बुध खान बहुर रच दीनी कहूँ खोज राजा पर बैठा कहूँ संत प्या शंकर कहता संग्री सृष्टि दिखाए जब आदिवाद स्वरूप स्वयं अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो वाला शिक्षण दुष्ट जिते अटवात पाता सकल मलेच करो रणदाता जे अस्त्र सरणी मरे तिनके कष्ट दुखित है मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब तारे जो कल को एक बार दे है ताके काल निकट नहीं है रक्षा हुए तहे सबका दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाय नर हो राखे लाभ तन को हर हो रित सिद्ध कर्म हो सब होए दुष्ट चार चर सके न को एक बार दिन तुम्हें संभारा काल वास्ते तारे माता जिन नर नाम तिहारो कहा दार दुष्ट दोख तेरा खड़ग केत में शरण तिहारी आप हाथ ले रो बारी सर्व ठोर मोह हो सारे दुष्ट दोख तेरे कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण समता किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को चय करता श्री अस्त जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ मन बांचत फल पावै सोई दुख नग से व्यापर कोई अड़े सुने गुंग जो याहे सुरस ना पावई सुने मूड चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पौ निकट न तिन नर के रहे पौ जो या की एक बार चापई को कहे दुख दर्द पौ निकट न तिन नर के रहे पौ जो आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाए सतगुरता पाया सहज सिद्धि मन वजिया वरान राग रतन परिवार परिया शब्द गावने आया शब्दोता गावो हरे केरा मन निवसा कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सारना अंगीकार हो करे तेरा कर सब सवारना सब नागला सुरत स्वामी सुख सवार कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं करते रह करता तेरे सक जय तेरे सो पावन सदा सुख सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया बाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रह सचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा बिन दुखा सब गवाया कर शाम सुख मन आयो से आज नहीं सब पुना सदा कुर्बान किता गुर बैठो जिसनी आए वडियाया कह नानक सुनो संतोष तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द कार सभा के शब्द वाजे कला जित करतारिया पंच दूत तुदवस कीते काल कंठ कुमारिया तुर कर पाया तुम जिनको से नाम के लागे कह नानक तैस भोवत करे अनहद वाजे अनंत सुनो बट पागी हो सगल मनोरथ पूरे
पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी संत साजन पए सर से पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर है पर पूरे बिन मन नानक गुर चरण लागे वाहे अनहद पूरे श्लोक पवन गुरु वाणी पिता माता तत् महत दिवस रात दाई दाया खेल सगल जगत चंगियाइयां बुरियाइयां बाजे धर्म दूर धर्मिया पोया अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल नानक दे मुख उजले कहती छुट्टी नाम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। किन्ना दिता है तू रब्बा किवें जिक्र करावे हर दम हर वेले तेरा शुक्र करा मैं शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा सारे शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा 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 मैं तेरा शुक्र करा पल में तेरा शुक्र करा जग होवे हनेरा शुक्र करा जग होवे सवेरा शुक्र करा सुख दुख सब तेरा शुक्र करा कुछ भी नहीं मेरा शुक्र करा कण विच तेरा शुक्र करा सदा है बसेरा शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा 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 मैं तेरा शुक्र करा मैं तेरा शुक्र करा। जय गुरु जी। हमारे प्यारे गुरु जी के चरणों में एक प्यारी अरदास। हे गुरु महाराज, हम आपकी शरण में हैं, हमें अपना बना लो। हम चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, आपकी शरण में हैं, हमें अपना बना लो।
आप हमारे हाथ पकड़ लो। हम आपका हाथ पकड़ेंगे तो हमसे छूट जाएगा। आप ही हमारा हाथ पकड़ लो, हमें अपना बना लो। हे गुरु महाराज, हम पर तरस करो। हमें अपनी सेवा से, सिमरन से, नित्य नेम से हमेशा जोड़े रखना। हमें कभी भी अपने चरणों से दूर ना करना। हमें अपनी भक्ति का दान देना। श्वास श्वास सिमरन की दात बख्शना, विनम्रता की दात बख्शना। हे गुरु महाराज, हमें 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से हमेशा दूर रखना। हमसे कभी भी कोई भी ऐसा काम मत करवाना जो आप जी को अच्छा ना लगता हो। हे गुरु महाराज, हमें बख्श दो। हमारे इस जन्म के, हमारे पिछले जन्मों के, हमारे जानबूझकर किए गए, हमारे अनजाने में किए गए बुरे कर्मों को, गुनाहों को बख्श दो। अब हम आपकी शरण में हैं, हमें अपना बना लो, हमें अपना बना लो। गुरु महाराज, हमारे बस में ये कुछ भी करना नहीं है। आप ही तरस करो और हमसे सब कुछ करवा लो। हम भूलनहार हैं और आप बख्शनहार हो। हमें बख्श दो, हमें बख्श दो, हमें बख्श दो, हमें बख्श दो। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।